করা তারা যথেষ্ট টাইমে পৌঁছেছেন এবং আমরা টাইম অনুযায়ী চলছি আজকে। তো আমরা আমাদের গার্জেনের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে তারাও টাইমের মধ্যেই এসে গেছিলেন, অন্তত 50% ফুল আপ হয়ে গেছিলো এবং নেক্সট 20 মিনিটের মধ্যে আলহামদুলিল্লাহ প্রায় পুরোটাই ফিল আপ। ডান দিকে কিছু সিট আছে, ওটা ইনশাআল্লাহ ফুল আপ হয়ে যাবে। আমরা কিছু আরও এক্সট্রা চেয়ারের ব্যবস্থা করছি আর বাম দিকে। তো এটা একটা খুব আমাদের কাছে সুখবর যে আমাদের সাথে এসেছেন কাদির মাস ভাই, যিনি প্যারেন্টিংয়ের ওপরে এক ঘন্টা 15 মিনিটের মতো একটা সেশন নেবেন। প্যারেন্টিংটা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, কারণ আমরা অনেক সময় হতাশ হয়ে যাই যে আমার বাচ্চা আমার কথা শুনছে না, আমার বাচ্চা আমার পারফর্ম করছে না। যারা আমাদের স্কুলের সাথে জড়িয়ে আছেন অনেক সময় টিচারদের কাছ থেকে কমপ্লেন যায়, আপনার বাচ্চা স্কুলে সেই দুষ্টামি করছে, এটা করছে, ওটা করছে। তো এরকম বহু কমপ্লেন আপনাদেরকে শুনতে হয় গার্জেন হিসেবে। কিন্তু আমরা যতটা আমাদের নলেজের মধ্যে আছে সেই নলেজ অনুযায়ী আমরা আমাদেরকে সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করি, কিন্তু সেই সমাধানগুলো অনেক সময় খুব টেম্পোরারি হয়ে যায়। মানে পার্টিকুলার একটা দুষ্টামি করেছে বা বদমাইশি করেছে বা কিছু একটা করেছে, তার বিনিময়ে আমরা একটা পানিশমেন্ট দিলাম বা তাকে একটা কিছু বোঝালাম, কাউন্সেলিং করলাম, একটু ভালোবাসলাম, এইরকম টাইপের একটা টেম্পোরারি সলিউশন হয়ে যায়। কিন্তু প্যারেন্টিং ইটসেলফ একটা খুব গভীর একটা শব্দ এবং এটার জন্য একটা রিসার্চ প্রয়োজন। এটার জন্য একটু আমাদেরকে সতর্ক হয়ে আমাদেরকে একটা পার্মানেন্ট সলিউশনের দিকে যেতে হবে। আর এই পার্মানেন্ট সলিউশনটাই হচ্ছে প্যারেন্টিং, এবং যার উপরে আজকের আমাদের মাস টাইম নিয়ে এসছেন। উনি এই ব্যাপারে কিছু কথা আপনাদেরকে বলবেন। তিনি আমাদের যে হাওনা কারিকুলাম যেটা চালু হয়েছে, আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন, তিনি হাওনা কারিকুলামের একজন গুরুত্বপূর্ণ মেম্বার, কোঅর্ডিনেটর, ডাইরেক্টর। এছাড়াও আমাদের যে আরও যে এমএফআইডি আছে, উনি এমএফআইডির একজন সক্রিয় মেম্বার। আমাদের কল ওয়ান একটা প্রোগ্রাম চলছে, আপনারা অনেকে হয়তো জানেন, উপস্থিত থেকেছেন। তো আর বেশি সময় নেব না, আমি মাস ভাইকে রিকোয়েস্ট মাস ভাই टू कंटिन्यू। उर्दू बांग्ला इंग्लिश सब मिला के थोड़ा सेशन होगा इंशाल्लाह फ्रूटफुल सेशन होगा, इफेक्टिव होगा, ये दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड आफ्टरनून एवरीवन हु इज प्रेजेंट हियर। आज जो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो अपने बच्चों को लेकर किस तरह से अपने बच्चों के साथ अपने स्टडीज़ में, अपने बिहेवियर को लेकर, अपने फूड हैबिट्स को लेकर कैसे अपने बच्चों के साथ हम लोग डील करें, इसके बारे में कुछ हम डिस्कस करेंगे। आवाज़ क्लियर है सबको? आवाज़ सुनाई दे रहे हैं? Are you able to listen? Am I audible? आवाज़ सुनाई दे रही है? अब आ रहा है? सुनाई दे रहा है आप लोगों को? सबसे पहले देखो, पहले क्या होता था, अक्सर गाँव होता था। जितना भी हम भारतवर्ष में जाएंगे सब गाँव में थे। सिटीज बहुत बड़े थे। सबसे बड़ा सिटी कौन सा था 200 साल पहले? 200 साल पहले सबसे बड़ा सिटी कौन सा था इंडिया में? सिटी कौन सा था? सिटी शहर कौन सा था? कोलकाता। बॉम्बे से पहले सबसे बड़ा शहर कोलकाता, उसके बाद बॉम्बे, दिल्ली, बाद में बैंगलोर, हैदराबाद। तो सिटी कल्चर नहीं था, समझ रहे? तो पहले क्या होता, एक घर होता जहाँ पे गाँव में 50 घर होते हैं। एक गाँव में 50 घर होते हैं और 50 घर वाले बच्चे की तरबियत करते हैं। कितने लोग बच्चे की तरबियत करते हैं? 50 घर वाले तरबियत करते हैं। एक चाइनीज प्रॉप है, कहावत है, चाइना में चाइनीज कहता है, इट टेक्स ए विलेज टू रेज ए चाइल्ड। इट टेक्स ए विलेज टू रेज ए चाइल्ड। समझ में आ रहा है क्या होता है इंग्लिश में? इट टेक्स तरबियत करते हैं। एक चाइनीज प्रॉवर्ब है, कहावत है चाइना में, चाइनीज, वो कहता है, इट टेक्स ए विलेज टू रेज ए चाइल्ड। इट टेक्स ए विलेज टू रेज ए चाइल्ड। समझ में आ रहा है क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इट टेक्स ए विलेज टू रेज ए चाइल्ड, यानी एक बच्चे को बड़ा बनाने के लिए, एक बच्चे को, सुनाई दे रहा? আপনারা সবাই একটা করে ফাইল পাবেন। ওই শোনার ধৈর্য সবার থাকে না,
সবাই ওই একটা করে ওই প্যাডটা নেন, একটা করে পেন নেন, যেগুলো ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এখান থেকে মনে হবে সেগুলো একটু নোট ডাউন করে নেন, যাতে পরবর্তীকালে আমাদের কমিউনিকেট করতে সুবিধা হয়। थोड़ा बोल दिए कि नोट करने के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सुनाई दे रहा है, क्लियर है? असल में हमारा हिंदी अलग है, फिर वो लैंग्वेज भी बैरियर है ना, इसलिए थोड़ा समझने में भी टाइम लगेगा। 2-3 मिनट में एडजस्ट हो जाएगा। अब सुनाई दे रहा है, क्लियर है जी? मैंने आपके सामने एक प्रोवर्ब आपके सामने मैंने कहा था, इट टेक्स ए विलेज टू रेज ए चाइल्ड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इट टेक्स ए विलेज टू रेज ए चाइल्ड, यानी एक बच्चे को बड़ा करने के लिए, एक बच्चे को एक अच्छा मनुष्य बनाने के लिए पूरा विलेज, पूरा गांव चाहिए। पूरा गांव मिलकर बच्चे का देखभाल करता था। अभी क्या हो गया? सिर्फ फादर मदर बच्चे के लिए, और फादर मदर वर्किंग है। अगर फादर मदर जॉब कर रहे हैं तो फादर मदर भी पूरे तौर पर बच्चों के साथ नहीं है, समझ रहे हैं? तो हम इस 1 घंटे के सेशन में जानने की कोशिश करेंगे कि हम लोग के क्या क्या चैलेंजेस हैं और किस तरह से बच्चों के बॉडी को मजबूत रखना, उनके माइंड को मजबूत रखना, और उनके अखलाक बोलते हैं ना, वैल्यूज़, उसको हम लोग कैसे बनाना। तो इन सारे चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली बात जैसे हमारे सामने आई, पहला हमारा चैलेंज ये है कि बच्चे को सीखने के लिए कई ज़्यादा लोग थे, बच्चे को सीखने के लिए, बच्चे को एक्सपीरियंस करने के लिए। अब क्या हो रहा है? बच्चे को एक्सपीरियंस करने के लिए उतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, उतना ज़्यादा बच्चे को माहौल नहीं मिल रहा है बच्चे को। अब हमको इस सिचुएशन के अंदर कैसे डील करना है, किस तरह से हमको इस सिचुएशन में बच्चों की तरबियत करना है, बच्चों को तालीम देना है, इसके बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। थोड़ा फाइल डिस्ट्रीब्यूट कर लें, उसके बाद शुरू करेंगे। हिंदी समझ में आ रहा है आपको? प्रॉब्लम लग रहा है हिंदी समझ में? समझ में आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा था, पूरा नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा आ रहा। कुछ लोग हिंदी समझते हैं, करता है ना इंग्लिश में, हिंदी में करना कम है ना, बैकग्राउंड हिंदी करना पड़ेगा। हिंदी में बैंगलोर से और हम लोग भी हिंदी नहीं बोलते, हमारा थोड़ा डिफरेंट टेक्निक, हैदराबादी स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। हाँ, हिंदी समझ लेंगे ये लोग, थोड़ा सा स्पीड स्लो हो तो अच्छा है। स्लो करना है, वर्ड बाय वर्ड। साउंड क्लियर आ रहा है? साउंड क्लियर है। साउंड क्लियर है। सर ये थोड़ा चेयर इधर भेज दीजिए पेरेंट्स के लिए, चेयर। तो ये इधर रख सकते हैं क्या इसको सेंटर में? आप लोग थोड़ा सामने सामने आ जाइए, थोड़े लोग आए हैं, सामने के चेयर्स ले लीजिए सर, थोड़ा सामने ऑक्यूपाई कर लीजिए, थोड़ा लोग आए हैं पीछे। थोड़ा
आगे आगे जितने सारे खाली है सब आगे आगे ठीक है, ऐसे ही करते हैं। मुझे डिस्टर्ब हो जाएगा, सब लोग इधर आके खड़े गए 5-6 लोग, तो क्या करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा। आप अपना फ्लो पे आप कंटिन्यू कीजिए, जो पीछे पीछे आएगा किसी पेशेंट को करना हो। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाल्लाह मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलने की कोशिश करूंगा, समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमने जो बात हमारी शुरू की थी, बच्चे की तरबियत के लिए, बच्चे के नॉलेज देने के लिए, बच्चे को मैथ सिखाने के लिए, बच्चे को लैंग्वेज सिखाने के लिए और बच्चे को अच्छा कैरेक्टर सिखाने के लिए बच्चे को लोग चाहिए, पीपल। और सबसे बड़ी जो एक दौलत मिली है अल्लाह की तरफ से एक इंसान को, वो अडेप्टेबिलिटी है। अडेप्टेबिलिटी यानी इंसान जो चीज़ों को देख वो सीख लेता है। एग्जाम्पल, किसी ने अपने बच्चे को बंगाली सीखने के लिए कुछ स्कूल को भेजा क्या बचपन में, 3 साल की उम्र में किसका किसका बच्चा बंगाली बात, 3 साल की एज में किसका किसका बच्चा बंगाली पूरा बात करता है? एटलीस्ट 90% हाथ उठाइए। किसका किसका बच्चा बंगाली में बात करता है अपने घर में? 3 इयर्स की एज में, 3 साल की उम्र में बंगाली कौन कौन घर में बच्चा बात करता है? हाथ उठाइए। सबके घर में मदर टंग बंगाली है। 100% लॉक कर दिया जाए, 100%। तो कौन से यूनिवर्सिटी में भेजा आपने अपने बच्चों को? कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सी स्कूल को भेजा आपने 3 साल की उम्र के लिए? भेजा किसी ने? किसी ने नहीं भेजा जी। तो किसी ने भी नहीं भेजा, तो बच्चा कैसे सीखा? बच्चा कैसे सीखा? लिसनिंग। बच्चा कैसे सीखा? आपको बात करते 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 आपको लिसन किया, आपको ऑब्जर्व किया और उसको रिपीट किया। समझ रहे? क्या क्या किया बच्चा? आपको ऑब्जर्व किया, आपको लिसन किया, फिर उसको रिपीट किया। बच्चों के अंदर आपने एक आदत देखी होगी, बच्चे चीज़ों को रिपीट करते हैं। जैसे पानी लेके आओ, बच्चा बोलेगा पानी लेके आओ। दीदी को बुलाओ, बच्चा बोलेगा दीदी को बुलाओ। ये गॉड गिफ्ट है, ये अल्लाह ताला ने उसको एक आदत डाली है बच्चे को रिपीट करने की, ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए। तो दिस ऑल नेचुरल फ्लोस। और बच्चे को स्माइल करना और बच्चे को रोना, और मदर विल अंडरस्टैंड ये रोना दर्द की वजह से है, ये रोना भूख की वजह से है, ये रोना दुख की वजह से है, ये मदर विल एबल टू अंडरस्टैंड। तो अलग अलग पैटर्न है रोने के भी बच्चों के। तो ये सारा कम्युनिकेशन है बच्चों का। उसके बाद क्या होता है? फैमिली में है बच्चा, फैमिली के बाद स्कूल आता है। बच्चे का एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया। घर के अंदर आप चाहे तो अच्छा माहौल दे सकते हैं, इसलिए कि वो पूरा आपके कंट्रोल में है। बच्चा जितना भी घर के अंदर है वो सब आप लोगों के कंट्रोल में है, और बच्चा आप जैसा चाहेंगे बच्चों को ऐसा तरबियत देंगे। जैसे बड़े आए तो के खड़े होना, सलाम करना, मुस्कुरा कर मिलना, काम बोले तो पूरा काम करना, आप बच्चे को सिखा सकते हैं। मगर स्कूल आने के बाद क्या होता है? बाहर जाने के बाद, ट्यूटोरियल को जाने के बाद और प्लेग्राउंड को जाने के बाद बच्चे का एक्सपीरियंस मिक्स हो जाता है। समझ रहे हैं? अभी क्या हुआ, बच्चे का एक्सपोजर सिर्फ होम था, अब होम के साथ क्या हो रहा है? प्लेग्राउंड, ट्यूटोरियल, स्कूल, फ्रेंड्स, नेबर्स, सब मिला के बच्चे का एक्सपोजर जो है वो बढ़ गया। अब हमको क्या करना है? बच्चे को रोल मॉडलिंग करना है। क्या करना है? बच्चे को रोल मॉडलिंग, यानी जो चीज़ हमारे बच्चों के अंदर हमको लाना चाहिए वो चीज़ हमारे अंदर हमको लाना है। समझ रहे हैं? जो चीज़ हम हमारे बच्चे के अंदर लाना चाहते हैं वो हम अपने अंदर लाना है, उसको बोलते हैं रोल मॉडलिंग। क्या बोलते हैं उसको? बोलिए सब। रोल मॉडलिंग। इसका मतलब क्या होता है? जो चीज़ें हम हमारी बच्चों के अंदर लाना चाहते हैं
वो चीज़ों को हम हमारे अंदर लाना है तो बच्चे ऑटोमेटिक सीख लेंगे उसको। एक है रोल मॉडलिंग। उससे पहले और एक चीज़ है मेंटल मिमिक्री। क्या बोलते हैं उसको? मेंटल मिमिक्री। एग्जाम्पल, घोड़े को भागना कोई सिखाता है? नेचुरली घोड़ा भागता है, समझ रहे हैं? और कोई बकरा ये होता है ना, शीप गोट बकरा, वो हर्ड में 1000 बकरा हो तो एक को दूसरे को फॉलो करके जाता है। भैंस बैल क्या करता है? एक दूसरे को फॉलो करके जाता है। तो हर एक जानवर के अंदर अल्लाह ने नेचुरल फितरत रखा है, नेचुरल कुछ बाइंडिंग रखा है, उसको ऐसे ही करना है। तो इंसान के अंदर ये चिढ़ाने की सलाहियत अल्लाह ने दिया है। चिढ़ाना मालूम आपको? मिमिक्री। मिमिक्री मालूम आपको क्या होता है? मिमिक्री क्या बोलते हैं बंगाली में? हाँ, नकल करना, कॉपी करना। इंसान की और एक सिफत अल्लाह ने दिया, कॉपी करना, नेचुरल सिफत है। कॉपी करते करते इंसान सीखता है। एक एग्जांपल देता हूँ। एक आदमी गोल्ड स्मिथ है। गोल्ड स्मिथ का काम क्या है? गोल्ड स्मिथ का काम क्या है? गोल्ड स्मिथ सुनहर, जवाहर, सुनहर क्या काम करता है? वो सोने का काम करता है। सोने का कंगन बनाता है, सोने का चेन बनाता है। सुनहर के पास कोई आदमी गया काम सीखने के लिए, उसको कोई माइंड ओपन करके नॉलेज देता है। सुनहर को सोने का काम सिखाना है, गोल्ड का काम सिखाना है, कोई उसका माइंड ओपन करके नॉलेज फील करता है? कैसे होता है? कॉपी। कॉपी करके प्रैक्टिस करके इंसान अपना टैलेंट सीखता है, अपना स्किल सीखता है। इस तरह से इंसान भी अच्छा इंसान किसी और को देख के बनता है। समझ में आया? ये इस्लामिक साइकोलॉजी से भी प्रूव्ड है और वेस्टर्न साइकोलॉजी जो अमेरिकन ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजी है उससे भी प्रूव्ड है। पीपल लर्न थ्रू देयर इन्फ्लुएंस। पीपल लर्न थ्रू देयर इन्फ्लुएंस। इमीडिएट इन्फ्लुएंस। इमीडिएट इन्फ्लुएंस यानी सबसे ज़्यादा असर इंसान को वो करता है जो इंसान का सबसे करीब हो। एक बच्चे को सबसे ज़्यादा असर कौन करता है? जो इंसान से सबसे करीब हो। तो सबसे करीब कौन है इंसान के? एक बच्चे के पेरेंट्स। सबसे करीब पेरेंट्स। सेकंड कौन है? टीचर्स। तो पेरेंट्स और टीचर्स को कोलैबोरेट करना है। इधर घर में पेरेंट्स को काम करना है, स्कूल में टीचर्स को काम करना है। तो हम लोग चंद चीजें देखेंगे इसके सिलसिले से। जी जी नहीं, उससे पहले आज के सेशन में हम लोग 3-4 चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेरेंट्स बच्चों के साथ कैसे काम कर सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। और दूसरा, पेरेंट्स बच्चों को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं अच्छा पढ़ने के लिए, अच्छे डिसिप्लिन के लिए, अच्छे स्पोर्ट्समैन बनाने के लिए पेरेंट्स बच्चों को कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं, कैसे गाइड कर सकते हैं, इसको हम देखेंगे। और उसके साथ साथ पेरेंट्स चैलेंज फेस कर रहे हैं। बिना फ़ोन दिखाए तो बच्चा खाना नहीं खाता है। हो रहा है ना? खाना तो क्या कर रहे हैं? शॉर्टकट, फ़ोन दे दो खाना खा लेगा। चैलेंज हो रहा है, बच्चा बात नहीं मानता, जिद करता है। समझ रहे हैं? इन थोड़े चैलेंजेस को हम डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ अच्छे रोल मॉडल कैसे बनना। एज ए पेरेंट हम लोग, आज डिजिटल वर्ल्ड है, डिजिटल वर्ल्ड में हम ये नहीं बोल सकते कि बच्चे को फ़ोन ही नहीं देंगे। फ़ोन भी देना है, मगर कितना टाइम फ़ोन देना, कैसे देना है। वीडियोस को डाउनलोड करके रखना, यूट्यूब में लाइव नहीं देना है बच्चों को। पहले ही जो भी आप दिखाना चाहते हैं उसको डाउनलोड करके इंटरनेट ऑफ करके देना। ये सारे स्ट्रैटेजीज हैं जो निमहैंस, एक माइंड का रिसर्च सेंटर है बेंगलोर में, उन्होंने एक पूरा पब्लिकेशन किया कि पेरेंट्स कैसे बच्चों के साथ इसको डील करना है। तो सबसे पहला हमारा एपिसोड जी। तो बेसिकली 3 चीज़ों पे हम लोग बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। 3 चीज़ें। सबसे पहले बच्चों के लिए इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब कोई बच्चा बोलता है कि मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा। क्या बोलता है? मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा। क्यों पुलिस ऑफिसर बनेंगे? बच्चा कहेगा कि मेरे दादा पुलिस वाले थे।
इंस्पिरेशन हो गया। बच्चा बोलेगा मैं टीचर बनूंगा, क्यों? मेरी मौसी टीचर है। वो बच्चा बोलेगा मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, क्यों बनना है? मुझे देश की सेवा करना है। इस तरह से बचपन से बच्चों के अंदर इंस्पिरेशन होता है। तो हर बच्चा क्या बोलता है? आप बड़े होकर क्या बनेंगे? तो बच्चा क्या बोलता है? हमने भी वही कहा मगर नहीं बने, सब वही कहा। क्या बोले? सबसे पहला ऑप्शन, बच्चे को पूछो आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो हर बच्चा क्या बोलता है? सबसे पहले क्या बोलता है बच्चा? डॉक्टर और इंजीनियर, दो चीजें बोलता है। बाद में क्या बोलता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नहीं तो बोलता है पुलिस, मिलिट्री। तो कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में एक इंस्पिरेशन है, मुझे ऐसा बनना है। हमको बच्चों को क्या बोलते हैं? बच्चों को पढ़ो पढ़ो पढ़ो, होमवर्क करो। जब बच्चा खुद बोल रहा है मुझे डॉक्टर बनना है, मगर पढ़ो बोले तो क्या बोलता है? इंटरेस्ट नहीं दिखाता। होता है ना ऐसा? किसको प्रॉब्लम नहीं है? पेरेंट्स को बच्चों को होमवर्क कराने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए किसको प्रॉब्लम नहीं है? हाथ उठाइए। कोई पेरेंट बोले कि हमको प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा अपने से होमवर्क कर लेता है, अपने से पूरा स्टडीज कर लेता है, स्कूल का जाने का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। कौन पेरेंट घर में ऐसा है? हाथ उठाइए। सबके घर में कुछ तो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तो कुछ challenge है। तो इसके लिए सबसे पहले बच्चे को इंस्पायर करना, बचपन से कुछ रहना कि मुझे बड़ा बनना है, मुझे कुछ करना है, मुझे स्पोर्ट्समैन बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे देश की समाज की सेवा करना है। ये इंस्पिरेशन बच्चे के अंदर हमको लाना है। कैसे लाएंगे? तो इसके जरिए से बच्चों को बड़े बड़े जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, सहाबा हैं, जितने बड़े लोग हैं, उनके स्टोरीज बोलना, उनके वाकयात बोलकर बच्चों को इंस्पायर करना। समझ रहे हैं? और दूसरी बात जो है, बच्चों पहला क्या? इंस्पिरेशन, उनको उभारना इस काम के लिए, मोटिवेट करना। दूसरा क्या करना? बच्चों को कुछ गोल्स देना। बच्चों को गोल्स मतलब समझ रहे हैं आप? लक्ष्य। लक्ष्य का मतलब क्या? आप भी बोलते हैं ना लक्ष्य, उसको एम्स, गोल, ऑब्जेक्टिव्स, ये होना है। अब 10th स्टैंडर्ड में है बच्चा, उसको बोलेंगे तेरा लक्ष्य है तो 95% स्कोर करना है एग्जाम में। बड़े बच्चे को बोलेंगे 12th में बोलेंगे नीट क्लियर करना है। छोटे बच्चे को क्या बोलेंगे? समझ रहे हैं? बड़े बच्चे को बोलेंगे 90% स्कोर करना है 9th में, 10th में। 11th 12th में बोलेंगे नीट, लक्ष्य आपका नीट स्कोर करना है। ग्रेजुएशन में है तो बोलेंगे अच्छा जॉब जाना है, अच्छा नौकरी आपको लेना है। अब 3rd 4th के भी पेरेंट्स हैं इधर, 4th स्टैंडर्ड 3rd स्टैंडर्ड के भी पेरेंट्स हैं। इन बच्चों को क्या गोल देंगे आप? कौन बोलेगा? छोटे बच्चों को इतना बड़ा गोल नहीं दे सकते। क्या देंगे? क्या देंगे? एक एग्जाम्पल, अगर आप 1 घंटे के अंदर अपना होमवर्क खत्म कर लिए तो आपको 20 मिनट्स गेम्स खेलने देंगे। गेम्स जैसे टेनिस, या तो इंडोर गेम्स हुआ, या तो वीडियो गेम। वीडियो गेम भी बच्चे खेल सकते हैं। आप बोलेंगे आप कैसे टीचर हो, आप बोल रहे हैं वीडियो गेम खेलना है। वीडियो गेम बच्चे खेल सकते हैं, बट फिक्स टाइम फिक्स करना है। 1 आवर से ऊपर ओवरऑल मोबाइल फ़ोन का यूज़ एक दिन में 1 आवर के ऊपर बच्चा नहीं करना है, और डिवाइड करना है। कभी कुछ कार्टून दिखाए 20 मिनट्स के लिए, और कोई गेम दिखाए बच्चे के लिए वो 20 मिनट्स के लिए। ऐसा ब्रेक करके बच्चों को हम लोग ऐसा हम सिस्टम बनाना है। जी 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 ठीक है। तो सबसे पहली बात हमारे बच्चों को ये एक तो इंस्पायर करना है, और दूसरा हमारे बच्चों को गोल सेट करना है। गोल सेटिंग में जैसे मैंने कहा, बड़े बच्चों को हम लोग गोल सेट करते हैं, ऐसा नहीं, छोटे छोटे चीज़ें। आप होमवर्क कर लिए तो ये मिलेगा, और आप ये क्वेश्चन आंसर आप समझ के हमको बोलेंगे तो एक चॉकलेट मिलेगा आपको। इस तरह से छोटे छोटे गोल देना, उसका रिटर्न देना बच्चों को, और प्रॉमिस को पूरा करना। रिटर्न भी देना और प्रॉमिस को भी पूरा करना, तो 2 चीज़ें। और तीसरा जो है, उनके अंदर पॉजिटिव बिहेवियर। मिसाल के तौर पर आते ही यूनिफॉर्म चेंज करना, अपना बैग अपनी जगह जाके रखना, आने के बाद मुंह हाथ यानी फेस वॉश करना, और आते ही खाना खाने का टाइम है तो खाना खाना,
और अपना जो भी कल की तैयारी है स्कूल की अपने टाइम पे करना। तो ऐसा उनके अंदर चेंजेस लेकर आना बच्चों के अंदर। पूरा एक दिन में नहीं होगा, एक एक मंथ में एक टारगेट लेना। तो हावना टेक्स्ट बुक जो हमारा हमने बनाया है, हावना टेक्स्ट बुक में हमने किसने देखा है, हैंडबुक, हावना हैंडबुक, उसके अंदर तरबिया चेकलिस्ट एक बनाया है हमने। एक एक वीक में 7 चीज़ें बच्चों को दिया है, ये सब बच्चों के अंदर बिहेवियर लाने के लिए। तो पेरेंट्स को क्या होगा, एवरी मंथ 7 थिंग्स, 7 चीज़ें, या तो कम से कम 5 चीज़ें बच्चों के अंदर एवरी मंथ हम चेंजेस लेकर आएंगे। तो सोचो एक साल में 50 चेंजेस आ जाएंगे बच्चे के अंदर स्लोली। एक महीने में 5 करेंगे तो 1 ईयर में कितने चेंजेस होंगे बच्चों के अंदर, 60 हो जाएगा। 10 ईयर्स में, 10th स्टैंडर्ड में कम से कम 600 चेंजेस बच्चों के अंदर आ जाएंगे। और वो चेंजेस कैसे करेंगे, छोटे छोटे चेंजेस। एग्जाम्पल, आपके कोई ट्रैवल कर रहे हैं आप, कोई बड़ा बुजुर्ग सीनियर आया तो उसके लिए देना, कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो उसको हेल्प करना, कोई स्कूल में पेंसिल पूछा तो अपना पेंसिल बिना पूछे जाके उनको हेल्प करना, किसी को क्वेश्चन आंसर समझ में नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन आंसर समझने के लिए उनको हेल्प करना, अपने क्लासमेट्स को। इस तरह से पॉजिटिव बिहेवियर बच्चों के अंदर लेकर आना। समझिए जब बच्चे का उम्र 18 साल 20 साल हो जाएगा तो कैसा रहेगा हमारा बच्चा, ये पूरे अखलाक का मालिक रहेगा। ही विल बी द ओनर ऑफ ऑल दिस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑल द वैल्यूज। सर आगे, तो इसके लिए समझ में आया। तो पेरेंट्स का टारगेट है ये, एक तो दुआ करना है हमको। सिर्फ दुआ करने से नहीं होगा, दुआ करने के साथ साथ हमारे बच्चों को कुछ प्लान बनाना है। जैसा अब हमने डिस्कस किया, इस तरह के हमको प्लान्स हमारे बच्चों के लिए बनाना है। और बच्चों के अंदर राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस पैदा करना है। उसको बोलते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी यानी सच तो सच, झूठ तो झूठ। बचपन से ही वो चीज़ उनके अंदर लाना है। बच्चों को बोलना है अगर आप कुछ गलती किया तो मैं आपको माफ़ करूंगा, मैं माफ़ करूंगी, मगर झूठ नहीं बोलना आपको। कभी भी जो है कोई इंसान झूठ नहीं बोलता। तो इस तरह से बच्चों के अंदर सच्चाई लेकर आना है और बच्चों के अंदर अमानतदारी लेकर आना। एग्जाम्पल, 2 चॉकलेट आपके पास हैं, एक चॉकलेट आप, दोनों चॉकलेट एक बच्चे को दे दिए। 2 बच्चे हैं, दोनों चॉकलेट एक ही बच्चे को दिए, बोलना एक खाना एक रखना। शाम में आपके छोटे भाई या तो बड़े भाई स्कूल से आने वाले हैं, आपके बड़े भाई स्कूल से आने के बाद उनको चॉकलेट देना। तो क्या हो रहा है, आप उनको हॉनेस्टी सिखा रहे हैं, अमानतदारी जिसको बोलते हैं, आप बच्चों को सिखा रहे हैं। तो इस तरह से इंटीग्रिटी और एक तो अमानतदारी सिखाना और एक बात है बच्चों के अंदर स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाना। स्ट्रेस मालूम आपको, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। इसको बोलते हैं रिजिलियंस, इंग्लिश में बोलते हैं रेजिलियंस। यानी कोई एक परेशानी होंगे, अगर एग्जाम में पास नहीं हो रहा है तो बच्चा सुसाइड कर लिया, अगर सीट नहीं मिला तो सुसाइड कर लिया। एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से आपको मालूम कितने लोग सुसाइड करते हैं एक साल में पूरी दुनिया में? पूरी दुनिया में कितने सुसाइड होते हैं? सुसाइड जो होता है ना, कोई आदमी सुसाइड कर लिया, कितना होता है पूरी दुनिया में एक साल में? एवरेज 8 लाख है। कितना है? 8 लाख। पॉपुलेशन तो 700 करोड़ है, फिर भी कम है। मगर आदमी अपने से जान ले रहा है तो ये थोड़ा सोचने की बात है। नंबर तो 700 करोड़ के सामने छोटा है, मगर सोचने की बात है। इसका एक ही रीज़न है कि ज़िंदगी में कुछ प्रॉब्लम आया तो प्रॉब्लम से बाहर निकलने की उसको ताकत नहीं है। कुछ प्रॉब्लम आ गया, कोई आदमी स्ट्रांग है तो प्रॉब्लम से किसी ना किसी तरीके से वो प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगा। तो ये बचपन से सिखाना है बच्चों को प्रॉब्लम से कैसे बाहर आना। एग्जाम्पल, एग्ज़ाम में फेल हो गया बच्चा, एग्ज़ाम में फेल हो गया तो एक बच्चा स्ट्रेस लेके क्या होगा, वही बात को सोचने में लग जाएगा। एक बच्चा क्या करेगा, उसी बात को सोचते सोचते उसी में वो रह जाएगा। एक बच्चा क्या करेगा, अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से बोलेगा यस आई कैन डू इट वेल इन द नेक्स्ट एग्जाम बोल के वो क्या करेगा, नेक्स्ट एग्जाम अच्छी तरह से करेगा। सेम सिचुएशन, 2 बच्चे फेल हुए। एक बच्चा क्या किया, वो टेंशन स्ट्रेस में चला गया, और एक बच्चा क्या किया, अपने आप को पॉजिटिवली कहा कि यस आई हैव टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम। तो अपने आप को पॉजिटिव बोला और फिर वो अच्छे नंबर में पास किया। तो सेम प्रॉब्लम दोनों को आया, वो प्रॉब्लम को नेगेटिव लिया, वो प्रॉब्लम को पॉजिटिव लिया। तो इस तरह से बच्चों के अंदर
प्रॉब्लम से बाहर आने के टेक्निक को सिखाना है, प्रॉब्लम से बाहर आने के बच्चों के अंदर ताकत को पैदा करना है। वो कैसे होगा? बच्चे स्पोर्ट्स खेलना है। ये कैसे करेंगे? सिर्फ स्टडीज से नहीं, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स ऐसा गेम है, स्पोर्ट्स के अंदर आदमी जो है एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट सीखता है, मुझे करना है, मुझे जीतना है। एग्जाम्पल, आज जाके बच्चा फुटबॉल खेला, आज हार गया, फिर आएगा बोलेगा कल मुझे जीतना है, फिर कल जाएगा, फिर खेलेगा, फिर हारेगा, फिर बोलेगा जीतना है, फिर जाएगा, फिर हारेगा, फिर बोलेगा जीतना है। 10 बार हारते हारते क्या करेगा? वो जीतेगा। इसलिए साइकोलॉजिस्ट कहते हैं स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट। मदरसे में, पूरी इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, हर मदरसे में असर से मगरिब बच्चे को स्पोर्ट्स खिलाते हैं एवरी डे। अब स्कूल में क्या करते हैं, कभी खिलाते हैं, कभी मिस कर देते हैं, मगर मदरसे में हर दिन 1 आवर से 2 आवर्स रोजाना स्पोर्ट्स खिलाते हैं, बिकॉज माइंड एक्टिव रहता है। तो इसके लिए कम से कम 1 to 2 आवर्स फिजिकल एक्सरसाइज बच्चे को कराना। इससे क्या होगा? बच्चे के अंदर जीतना हारना, जीतना हारना होते होते बच्चे की आदत हो जाएगी। और जो इंसान कभी जिंदगी में हारा नहीं, कभी हारेगा तो वो बाहर नहीं आएगा। समझ रहे हैं? जो इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं हारा, ए पर्सन हु हैज नॉट लॉस्ट एनी टाइम इन हिज लाइफ, कभी नहीं हारा, मगर जब हारेगा ना वो बाहर नहीं आएगा। इसलिए जो है हारना, जिंदगी में मुसीबत आना, परेशानी, ये सारे चीज़ें इसलिए हैं कि हमको स्ट्रांग बनाता है। हर मुसीबत हमको स्ट्रांग बनाती है, हर परेशानी हमको कहती है टुमारो यू विल बी स्ट्रांग। समझ रहे? समझ रहे? हिंदी समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा स्लो बोलूँगा मैं। हर मुसीबत, हर परेशानी अपने आप को कहती है कल तू और स्ट्रांग रहेगा, तू कल और मजबूत होगा, तू कल और कामयाब होगा। तो परेशानी जो आती है ना, जो बच्चा फेल हो गया एग्जाम में, होमवर्क खत्म नहीं हुआ और मार्क्स ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, ये सारे चीज़ें आते हैं। तो बच्चों को मोटिवेट करना, यू विल डू वेल। बच्चों को हम लोग क्या करते हैं? बच्चों को डांटना शुरू कर देते हैं। क्यों कम लिया? 90% लिया था, अब 85 क्यों लिया? कोई बच्चा 70 लिया, हम पूछते हैं कि 70 लिया है, 80 क्यों नहीं लिया? हम लोग डांटते हैं बच्चों को। इससे क्या होगा? बच्चा डिमोटिवेट हो जाएगा। तो इसलिए क्या करना है? बच्चों को जितना बच्चा किया उसको अप्रिशिएट करना है। क्या करना है? उसको अप्रिशिएट करना है। और उसके लिए जो भी गैप्स आ रहे हैं, जो भी कमी आ रही है, उसको हम पूरा करने के लिए बच्चों को सपोर्ट करना। ठीक है? ठीक है। ठीक है, ठीक है। पहले हमने एक बात शुरू किया था कि हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडल्स, रोल मॉडल यानी कौन ऐसा आदमी है जिसको देख के बच्चा हमारा ऐसा बन सकता है। मिसाल के तौर पर कोई आदमी एक साइंटिस्ट को फॉलो किया, वो साइंटिस्ट बन गया। कोई आदमी किसी डॉक्टर को फॉलो किया, वो ऐसा डॉक्टर बन गया। और कोई आदमी किसी कोई एक पॉलिटिशियन को फॉलो किया और अच्छा पॉलिटिशियन बन गया। इस तरह से हर एक के लिए कोई ना कोई एक रोल मॉडल है। तो बेसिकली ये अलग अलग तरह के रोल मॉडल हैं। एक पहला रोल मॉडल है फैमिली मेम्बर्स। पहला रोल मॉडल कौन है बच्चे के लिए? दादा दादी, नाना नानी, अंकल, मौसी, खाला, फूफू, ये सारे हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं। और इसके साथ साथ दूसरा है हमारे टीचर्स। सबसे पहला फैमिली मेम्बर्स, और दूसरा टीचर्स, और तीसरा जो है पब्लिक फिगर्स। पब्लिक फिगर्स यानी जैसे स्पोर्ट्समैन है, सचिन तेंदुलकर है क्रिकेट के अंदर, और जावलिन थ्रो के अंदर जो अभी आया ना नीरज चोपड़ा, मालूम आपको? वर्ल्ड चैंपियन कौन है जावलिन थ्रो में? वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा अभी जावलिन थ्रो में वर्ल्ड चैंपियन है, इंडियन वर्ल्ड चैंपियन नीरज चोपड़ा। तो पब्लिक फिगर्स, अभी एपीजे अब्दुल कलाम को बच्चा, अरे अब एपीजे अब्दुल कलाम है, और एलन मस्क, कोई बड़े बड़े साइंटिस्ट, बिल गेट्स जिसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, स्टीव जॉब्स जिसने एप्पल फोन बनाया। तो ये पब्लिक फिगर्स हैं। तीसरा जो रोल मॉडल है हमारे बच्चों के लिए, पब्लिक फिगर्स को देखकर, उनकी जिंदगी देखकर, और दूसरा हमारे साहबा जितने हमारे बड़े हैं वो हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडल्स हैं। तीसरा जो है कम्युनिटी फिगर्स, सॉरी चौथा क्या है उसको बोलते हैं कम्युनिटी लीडर्स। कम्युनिटी लीडर्स जो अपने बंगाल के अंदर जो लीडर्स हैं, अपने मालडा के अंदर जो लीडर्स हैं, समझ रहे हैं? लोकल लेवल में जितने स्पोर्ट्समैन हैं, लोकल लेवल में जितने पॉलिटिशियन हैं, जितने सोशल वर्कर हैं, समझ रहे हैं?
और स्कूल के अंदर कोई हमारे HM हैं, स्कूल के मैनेजमेंट हैं, ये सारे कम्युनिटी के लीडर्स हैं, इनको भी देख के बच्चे इंस्पायर होते हैं। तो बच्चा इन्हें बोलता है कि मैं आपसे इंस्पायर हो गया, आपसे इंस्पायर हो गया, ये सबकॉन्शियस है, यानी बच्चे को खुद नहीं मालूम कि वो इंस्पायर हो रहा है। समझ में आ रहा है? जो आदमी किसी से इंस्पिरेशन ले रहा है उसको खुद पता नहीं को इंस्पिरेशन ले रहा है, इनडायरेक्टली बच्चा जो है थोड़ा थोड़ा बोल के जो है बच्चा इन सारे चीज़ों से बच्चा इंस्पिरेशन ले रहा है। और कोई है इस लिस्ट के अलावा जो से बच्चा इंस्पायर होता है? इस लिस्ट के अलावा और कोई है? ये 4 चीज़ें हैं, और भी बहुत सारे हैं, ये मेन 4 चीज़ें हैं जिससे बच्चा इंस्पायर होता है। आपको लगता है कोई और भी इस लिस्ट के बाहर है जिससे बच्चा इंस्पायर होता है? है कोई और? पहला बोलिए कौन था? पहला बोलिए। फैमिली। दूसरा कौन था? टीचर्स। तीसरा पब्लिक फिगर्स। चौथा था कम्युनिटी लीडर्स, लोकल लेवल में जो लोग हैं वो इंस्पिरेशन। एग्जाम्पल, बच्चा नमाज को जाता है, नमाज पढ़ने के लिए, वहाँ के जो इमाम साहब हैं अच्छे कैरेक्टर के हैं, तो उनको देख के बच्चा सीख रहा है। मस्जिद में जाता है बच्चा, कोई पड़ोस नमाज के लिए आ रहे हैं, उनको देख के बच्चा सीख रहा है। तो थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस लेते लेते जब बच्चे की एज 20 ईयर्स हो गई ना, ये 20 ईयर्स में जितने दिन, अभी 20 ईयर्स में कितने दिन हैं? 7000 दिन के करीब। 20 ईयर्स में कितने दिन है इंसान के? 20 ईयर्स की एज में इंसान कितने साल जिया है? 20 ईयर्स जिसकी जिंदगी हुई, वो 20 ईयर्स में कितने दिन जिंदगी गुजारा इंसान ने? कितना है? समझ में आपको? इधर समझ में आया सवाल? एक इंसान की जिंदगी 20 साल की हुई, कितनी हुई? 20 साल की। कितनी हुई बोलिए? आप बोलिए, सब बोलिए। 20 साल, 20 ईयर्स। कितने दिन उसके मिले जिंदगी के? 7300। कितना? 7300 दिन। अब देखो, आप 1 घंटा बैठे हैं, कितना है बैठे आप? 1 घंटे के लिए आप बैठे हैं, ऐसे 24 घंटे, वो 1 दिन, ऐसे 7300 दिन मिले इंसान को 20 साल की जिंदगी में। तब यूनिवर्सिटी खत्म करता है। 21 ईयर्स की एज में बच्चा क्या करता है? समझ रहे हैं? 21 ईयर्स की एज में बच्चा क्या करता है? यूनिवर्सिटी खत्म करता है। ये दिन कम है, छोटे हैं? 7000 दिन ज्यादा है, कम है? बोलिए, कौन कौन बोलता है कि 7000 दिन जो गुजरे ज्यादा है? कौन कौन बोलता है ज्यादा है? 7000। एक इंसान को बनाने के लिए 7000 दिन काफी है? एक इंसान को अच्छा इंसान बनाने के लिए 7000 दिन काफी है? तो हाथ उठाइए। इज 7000 days enough for a man to become a good human being? 7000 दिन, हाथ उठाइए अगर नहीं। सही ना? तो समझिए, एक बच्चा ग्रेजुएट होता है तो 21 ईयर्स की एज होती है उसकी। पूरा कैलकुलेट करेंगे, 23 ईयर्स का एवरेज डालेंगे, 8000 दिन। कितना? कितने दिन? एक बच्चा ग्रेजुएट होके जॉब के लिए आता है तो 8000 दिन की एक्सपीरियंस है उसकी। कितनी? 8000 दिन की। तो हर पेरेंट बोलना मेरे पास 8000 दिन है। क्या बोलना? कितने दिन है आपके पास? बोलिए। 8000 दिन मेरे पास है मेरे बच्चे को बनाने के लिए। तो ये कमिटमेंट आज लेकर जाना। तो इंशाल्लाह और भी एक सेशन हमारा है, मैं बुरहान सर को इनवाइट करता हूँ ये सेशन कंटिन्यू करने के लिए। तो मैं उससे पहले समराइज करता हूँ। सबसे पहले बच्चे के लिए रोल मॉडल होता है, दूसरा एक इन्फ्लुएंसर होता है, ठीक है, एक इन्फ्लुएंसर होता है। और इन्फ्लुएंसर में 4 तरह के इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, एक फैमिली, दूसरा टीचर्स, तीसरा कम्युनिटी, तीसरा पब्लिक, चौथा कम्युनिटी। और फिर ये सारे चीज़ों को बच्चों को बनाने के लिए एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है। हमको क्या करना है? नेगेटिव को छोड़ के पॉजिटिव के, और पॉजिटिव की तरफ फोकस करने के लिए कितने दिन हमारे पास? 23 ईयर्स तक बच्चे के 23 ईयर्स तक हमारे पास कितने दिन है? कितने? जोर से बोलिए। 8000 दिन हमारे पास है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो मैं इनवाइट करता हूँ बुरहान सर से। तो बुरहान सर, मैं और हम दोनों पेरेंटिंग पे काम करते हैं। तो एक रिसर्च सेंटर है इनका बेंगलोर में। ये जो बच्चों के जो जनरेशन है, 100 साल पहले के बच्चे अलग थे, 50 साल पहले के बच्चे अलग थे,
20 साल के पहले के बच्चे अलग थे, अभी जो बच्चे हैं वो अलग हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी अलग अलग है। एक बच्चा था तो टाइपिंग मशीन था, फिर एक बच्चा आया तो कंप्यूटर था, और एक बच्चा आया फिर नेक्स्ट तो लैपटॉप, एयरपॉड, क्या बोलते हैं, आईपॉड, आईपैड, एआई। अब सर बता रहे हैं सर अब तो एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी। अब कौन से ज़माने में जी रहा है बच्चा? चैट जीपीटी के ज़माने में जी रहा है। तो ऐसे हालत में बच्चों की थिंकिंग क्या है, बच्चों के एस्पिरेशंस क्या हैं, बच्चे माँ बाप से क्या चाहते हैं, बच्चे सोसाइटी से क्या चाहते हैं, बच्चे कैसा जॉब करना चाहते हैं, और बच्चे अपने आप के अंदर क्या क्या जो है इंसान, अपने आप को कैसे इंसान बनाना चाहते हैं, उनके क्या प्रेफरेंसेस हैं, इंशाल्लाह इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई इनवाइट बुरहान सर टू टेक ओवर। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली, जज़ाकल्लाह। विल कंटिन्यू।